Till then you revise whatever we did in last class so that I can ask you certain things. I'm just opening this document. We have 24 students in this group. Sir, today maximum 16 was there. Okay. Previous lecture. पर यहाँ तो सिर्फ 5 या 6 ही हैं। सर धीरे धीरे करके आ रहे हैं सर बच्चे। आ रहे हैं? अरे चलो ठीक है। सर लास्ट लेक्चर में भी यही हुआ था। कल? नहीं मतलब थर्ड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में क्या हुआ था? पहले 7-8 बच्चे थे, फिर आखिरी तक 16 हो गए थे। किसका था बेटा पहला लेक्चर? सो मैक्स का था। DFTL फर्स्ट DFTL। और इससे पहले एंड का था मैथ्स। राहुल आपने वो चेक करा कि ये आपका जो यूनिवर्सिटी से सिलेबस आता है उसमें टेस्टिंग है कि नहीं है? नहीं है ना शायद? नहीं है ना? चेक नहीं किया सर मैंने। नो सर नहीं है, मैंने किया था सर। और सेशनल्स के बारे में पता चल गया आप लोगों को? यस सर, जीमेल की आईडी मांग रहे थे आज कंफर्म करने के लिए।
Let's wait for 2 minutes more and then we will start. तब तक कोई आ जाए तो अच्छी बात है. So, Ayush Srivastava. Ayush. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Can you explain the first line which I have highlighted? सर ये STLC जो सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक ये वाला. सर जो STLC होता है वो सर ऐसा मतलब कि स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो हम टेस्टिंग के द्वारा मतलब टेस्टिंग के टाइम करते हैं सर. और सर इसमें हम चेक करते हैं कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है सर उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब कि क्वालिटी कितनी अच्छी उसकी क्वालिटी है ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस. ठीक है. चिराग कुमार. चिराग कुमार. Chirag Kumar, am I audible to you, Chirag? There is no point of attending the class if I'm not audible to you. He's leaving. Very good. Girisha? Yes, sir. Can you explain both these lines? Yes, sir. Sure. STLC involves both verification and validation. This line means that in the process, when we perform software testing lifecycle to test any of the software, then in each step we verify the things what we are doing. After performing each step, we verify it, and at last we check the validation of it, that it actually works or not. We validate that software. Then the second line is software testing consists of series of activities carried out methodology to help certify your software product. This means that the thing which we are studying right now, the software testing life cycle, it consists of several sequence of activities and several steps which we perform and check the software quality or the things or the bugs that software have. We check all that things,
and this is known as a particular method which we use to clarify the details of the software or the testing we have been doing on that software. Okay, good, Girisha. So next is your Moksh Pasricha. Moksh Pasricha. Audible, not audible, Moksh. Moksh, am I audible to you? Prachi. Prachi. Moksh and Prachi. Rahul. Yes, sir. Rahul, first two steps. Okay, sir. The first step is requirement analysis. Sure, requirement analysis is the first step of software testing life cycle. In this, the quality assurance team understands the requirement that what is to be tested, the requirements of the clients. If anything is missing or not understandable, then that quality assurance team meets with the stakeholders to better understand the detailed knowledge of requirement. And so second part is test planning. Test planning is the most efficient part of this software testing lifecycle, where all the testing plans are defined. In this phase, the manager means the manager of the testing team, who is at the senior level, calculates the estimated effort or cost of the testing work. This part gets started once the requirement gathering phase is completed. Okay. Satish, third point. Third point, Satish. Okay. Okay, good, Satish. Anyone else who has joined us now? No one. Girisha, can you explain third and fourth point? Yes, sir, sure. Third point is test case development, and the fourth is test environment setup. And the third one, in which we basically whatever the analysis we have done or whatever the planning we have done for performing the software testing, so we basically write all the things, and then we I guess implement in this phase. I guess we think that कि In हम this. इसको कैसे प्रोसेस करेंगे पूरा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे कि हमारा जो भी आउटपुट होना चाहिए वो हमें मिले, तो हम इस पे पूरा वर्क करते हैं. और जो फोर्थ वाला है इन्वायरमेंट सेटअप, तो इसमें बेसिकली वी डेवलप एन इन्वायरमेंट लाइक
all the phases above, we do first follow the steps, because without following the upper steps we can't directly go for the environment setup. It is required to follow all the steps of this cycle. Then only a particular environment will be set up to perform that software testing, and then we finally execute all the things or the code which we have made. Okay. Fifth and sixth, who will explain? Fifth and sixth. Fifth point, who will explain? It's very simple. Fifth point. Nandini, can you explain fifth point? Yes, Rahul, please go ahead. Yes, sir. So the fifth point is test execution. After the test case development and test environment setup, test execution. This part gets started. In this phase, the testing team start executing test case based on the prepared test cases in the earlier step. The test team execute all the steps, and the next point is test closure. This is the last stage of software testing life cycle, STLC, in which the process of testing is analyzed the whole. Okay, and the sixth one? सिक्स बता दिया मैंने, टेक्स्ट क्लोजर. इसमें वो सारी की सारी टेस्टिंग एनालाइज की जाती है. Okay. And after that we discuss entry and exit criteria. Who will explain this? Entry and exit criteria. Sir, may I, because nobody Angelica, else please. is there. Yeah, please go ahead. The first is entry criteria. In this criteria, you that before performing any testing, or before at least beginning this STLC cycle, whatever the materials we have collected or the informations we have gathered and the data we have, that is the entry criteria to perform the testing. And then the exit criteria defines the item that must be completed before testing can be concluded. So it particularly says that जब एंट्री क्राइटेरिया से तो हमने अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर ली चीजें कलेक्ट करके, बट एग्जिट क्राइटेरिया तब आता है जब हम अपनी पूरी STLC जो साइकिल है उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट कर लें लास्ट तक, तब हमारा एग्जिट क्राइटेरिया आता है, और जो हमारा कंक्लूडेड सॉफ्टवेयर निकलता है टेस्ट होके वो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया में आता है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. Now next is your deliverables of requirement analysis phase of STLC. Satish, I want you to explain this. And
हम्म ओके, नो इश्यू। So let us start, because today's thing RTM is basically where we trace our requirements and test cases, both the things, कि हर एक requirement के corresponding have we made that test or not. So this is your requirement traceability matrix. ऑटोमेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे कितना फिजिबल रहता है हमारा ऑटोमेशन वाला इन्वायरमेंट, उस बेसिस पे। सो दीज आर द टू डिलीवरेबल्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। तो कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, वेट, वी मॉडल सबको समझ में आ गया था? कोई डाउट इसमें किसी भी बच्चे को? तो STLC में हमने पढ़ा था कि एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि STLC एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, तो यहाँ पर टुडे व्हाट आई विल डू इज कि अभी मैंने सिर्फ आपको ओरली बताया था कि हर एक फेज की क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो डिस्कस इनटू मोर डिटेल। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का हम की एक्टिविटीज को हम आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। सो दिस इज आइडेंटिफाई types of tests to be performed। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। गैदर डिटेल्स अबाउट प्रायोरिटीज एंड फोकस। तो मैंने जब आपको ये समझाया था रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, तो उसके साथ में ये बोला था कि इधर हम रिक्वायरमेंट्स को टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज योर प्रिपेयर। RTM I have already told you, and then identify test environment details where testing is supposed to be carried out. Testing is supposed to be carried out. और उसके बाद जो लास्ट है, अगर ऑटोमेशन कर रहे हैं तो फिर हम जो ये वाला था ऑटोमेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सेम थिंग इसको भी, इसका क्योंकि डिलीवरेबल है तो इसके अंदर ये आएगा ही आएगा। सो ये सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर टेस्ट प्लान। सो टेस्ट डिलीवरेबल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RTM। दूसरा क्या था, बोलो बोलो बेटा, दूसरा क्या था? अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा।
Tell me, what is the deliverable? The RTM feasibility report. Feasibility, हाँ जी, automation feasibility report, AFR. उसके बाद हम टेस्टिंग प्लानिंग के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं. सो हियर वी हैव सब्जेक्ट है ना, इवन यू नीड नॉट टू गिव इट्स एग्जामिनेशन, राइट. बाकियों को you have to listen to the teachers from examination point of view. Here you are only listening for your knowledge purpose and submitting assignments. So preparation of test plan, strategy, document for various types of testing, and the second one is test tool selection, कि कौन सा टूल हमको सेलेक्ट करना है, कौन से टूल के थ्रू हम इसको कर सकेंगे टेस्टिंग को. फिर उसके बाद टेस्ट एफर्ट एस्टिमेशन. एफर्ट एस्टिमेशन क्या होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने टेस्टर्स हमको चाहिए, कितने एफर्ट्स लगाने, कितने. स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो उस टाइम आई टोल्ड यू दैट we have two kinds of projects along with us. The first one is your कौन से बताए थे, can any one of you recall? Yeah, so first one was hourly based projects and the second one was development and fixed budget projects. So उस टाइम पे जब हम hourly बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो सपोज हमको 500 आवर्स दिए हैं क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वर्किंग आवर्स, तो उसमें से हम टेस्टिंग को कितने आवर्स यूटिलाइज करेंगे. सो ये जो है, दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड इनटू योर टेस्ट एफर्ट एस्टिमेशन. उसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग एंड डिटरमाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसमें हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिएंगी टेस्ट करने के साथ साथ, कितने लोग हमको चाहिएंगे टेस्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ हर एक इंडिविजुअल जो टेस्टिंग टीम में है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगे, कि इस वाले पर्सन को फंक्शनल टेस्टिंग करनी है, इस वाले पर्सन को नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करनी है. सो दिस इज योर determining the roles and responsibilities. उसके बाद में जो लास्ट आता है, that is your training requirement, कि क्या मुझे अपने लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कंपनी के अंदर. Do I have to give training to my employees or the testing department to test this? Let's suppose कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसके ऊपर किसी ने पहले काम ही नहीं कर रखा, तो उस टाइम पे क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है टेस्टर्स के लिए या नहीं है. तो ये चीज़ें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है. कई बार क्या होता है कि जब नया प्रोजेक्ट असाइन होता है, तो उस प्रोजेक्ट को असाइन होते टाइम पे क्या करते हैं कि टेस्टर को बोलते हैं कि आप डेवलपर से जाके एक बार मिल लीजिए. तो डेवलपर सारे उसके नो हाउस बता देता है, और उसके बाद वो उसको बता देता है कि इसमें ये चीज़ें हैं और आपको इस तरीके से टेस्ट करना है. तो ये ट्रेनिंग होती है. वी कैन टेक दिस इनटू ट्रेनिंग. उसके बाद इसके जब डिलीवरेबल्स हमने देखे थे, तो डिलीवरेबल में टेस्ट प्लान था जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो उसका नाम ही है इस फेज का, और दूसरा क्या था, एफर्ट
estimation document। ठीक है, ये फेज क्लियर है सबको। इसमें हम टेस्ट प्लान बनाएंगे, मतलब स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस किस तरीके की टेस्टिंग करनी है, कौन सा टूल यूटिलाइज करेंगे, कितने डेवलपमेंट आवर्स, टेस्टिंग आवर्स इसमें यूटिलाइज होंगे, कितने पर्सन्स को हमको टीम बनानी है और उनकी हर एक की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी है। अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वी हैव टू गिव ट्रेनिंग और नॉट। और ये जब सारे काम हो जाते हैं तो दो चीज़ें आउटपुट में निकल के आती हैं। फर्स्ट वन इज ए टेस्ट प्लान एफर्ट एस्टिमेशन डॉक्यूमेंट। क्लियर है ये सबको? एनी डाउट? हाँ, any example of tools? I already gave you the example of tools। दिखाता हूँ कहाँ दिए थे। वेट, ये टूल है, दिस इज अ टूल। देन दिस automation tools, QTP, this is a tool। JMeter, क्या क्या करता है? हम्म, हम्म। सिलेनियम का वर्क बेटा ये होता है कि जैसे हमको लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है, तो हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को अभी तो मैनुअली चेक कर रहे हैं। एक बारी करेक्ट यूजर नेम डाला, करेक्ट पासवर्ड डाला, करेक्ट यूजर नेम डाला, इनकरेक्ट पासवर्ड डाला, इनकरेक्ट यूजर नेम डाला, करेक्ट पासवर्ड डाला। अभी हम उसको मैनुअली कर रहे हैं। सिलेनियम के थ्रू व्हाट वी कैन डू इज कि हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं उस चीज़ को। ऑटोमेटिकली एक्सप्लोरर आपने कोड उसमें जावा में उसको रन करा, जैसे ही वो खुले अपने आप आपका क्रोम ओपन होगा, अपने आप यूआरएल डलेगा, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आप आईडी अपने आप लिख जाएगी, पहली बार में करेक्ट, पासवर्ड भी करेक्ट लिख जाएगा अपने आप। कुछ सेकंड बाद एंटर का बटन प्रेस होगा और फिर वो आपको वेलकम स्क्रीन की तरफ ले जाएगा। अगर इतना पोर्शन अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया तो यानी कि कोई एरर नहीं है। अगर नहीं होता तो वो बीच में ही रुक जाता, वो एरर शो कर देता। तो ये इसको बोलते हैं ऑटोमेशन टूल। तो सिलेनियम का काम होता है अपनी टेस्टिंग को ऑटोमेट करना। राइट, सो ये वाले सारे टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेस्ट केस डेवलपमेंट पे। इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें द फर्स्ट थिंग इज क्रिएट टेस्ट केसेस, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, ऑटो के थ्रू ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट। दूसरा क्या है? रिव्यू एंड बेसलाइन। रिव्यू एंड बेसलाइन, टेस्ट केसेस एंड स्क्रिप्ट्स। और जो थर्ड इज इसमें क्या होगा कि हम पहले टेस्ट केस को बनाएंगे, उसको एक बार रिव्यू करेंगे कि वो जो टेस्ट केस बनाए हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो भी लिखी है, अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम देखेंगे कि इस स्क्रिप्ट में कोई एरर तो नहीं है। और फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज योर क्रिएट टेस्ट डेटा। अगर टेस्ट एनवायरनमेंट है हमारे पास तो हम टेस्ट डेटा को क्रिएट करके देख सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं।
और इसके जो आउटपुट हैं सो टेस्ट केसेस तो मैंने लिख ही रखा है पहले से, इसके साथ साथ टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा क्या है? टेस्ट डेटा वो जब टेस्ट केसेस लिखते हैं, करेक्ट यूजर नेम लिखा, इनकरेक्ट पासवर्ड लिखा, तो जब हम टेस्ट केसेस में आपको लिखना सिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इज योर टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में क्या हो रहा है? गिरीशा ने बताया था टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड आर्किटेक्चर। environment setup and prepare hardware and software requirement requirement list for the test environment, for the test environment। चीज ये है, पहली चीज क्या है कि सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड आर्किटेक्चर। जो भी आर्किटेक्चर है उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से ये मॉड्यूल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, किस एनवायरनमेंट में, मीन्स कौन कौन से इसको रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सा इसका हार्डवेयर चाहिए, कौन कौन से उसको सॉफ्टवेयर चाहिए उस टेस्ट एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए या उस टेस्ट एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट सेटअप। जो दूसरी चीज है दैट इज योर सेटअप एनवायरनमेंट। Am I audible to you? Yes, sir. You're. Okay, so this is your setup, test environment and test data। एज जो थर्ड, जो मतलब हमने ये सारा environment क्रिएट कर लिया, टेस्ट डेटा को भी हमने साथ में ले लिया। उसके बाद परफॉर्म स्मोक टेस्ट ऑन द बिल्ड। स्मोक टेस्ट बिल्ड। अब हम ये देखेंगे कि स्मोक टेस्टिंग क्या होती है। व्हाट डू वी कॉल इट एज smoke testing? Give me a moment। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे एक नया टॉपिक लिखते हैं आज के लिए, स्मोक टेस्टिंग। क्या होती है? एक तरीके की ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है जिसमें कि हम ये पता लगाते हैं कि जो ये बिल्ड बनाया है या जो ये मॉड्यूल बनाया है ये स्टेबल है या नहीं है। और इसका मतलब स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है कि क्या एक टेस्टर उस मॉड्यूल के ऊपर टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब इज दैट मॉड्यूल लिटिल बिट फंक्शनल। अगर ऐसा तो नहीं कि उसमें एक भी टैब काम नहीं कर रही है, ये लॉगिन पेज ही बनाया उसके बाद वेलकम स्क्रीन ही नहीं बनाई, तो फिर वो कैसे उसको टेस्ट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। सो इसकी अगर डेफिनेशन इफ यू वांट आई कैन राइट इट फॉर यू दैट स्मोक टेस्टिंग इज अ प्रोसेस where the software build is deployed मतलब वेब के ऊपर आ जाना to QA environment and is verified
to ensure the stability of the application. It is also called as the build verification testing or confidence टेस्टिंग। अब इसको हम एक वर्ड बाय वर्ड दोबारा से समझते हैं, ठीक है। मुझे पता है काफी बच्चों को नहीं समझ में आई होगी। कितने बच्चों को नहीं समझ में आई? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को नहीं समझ में आई? रेज योर हैंड। Am I audible to you people? Yes. समझ में आ गया? क्या समझ में आया? गिरीशा आप एक्सप्लेन करिए बेटा एक बारी। कोई बात नहीं, गलत होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। बेसिकली जो टेस्टिंग होती है उसे वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है उसको हम डिप्लॉय करते हैं क्वालिटी एनालिस्ट एनवायरनमेंट में, ताकि हम उसको वेरीफाई कर पाएं और उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते कि वो एप्लीकेशन स्टेबल है या नहीं है। मतलब ये कॉन्फिडेंस टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं इसको कि जब पूरी टेस्टिंग प्रोसेस एसटीएलसी परफॉर्म हो जाती है तो लास्ट में जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना स्टेबल है और वेरीफाइड है या नहीं है। तो इसीलिए इसे कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी हम बोलते हैं। ओके, स्मोक टेस्टिंग क्या होती है? जिसमें देखिए लिखा हुआ है इज अ प्रोसेस, यानी कि एक्टिविटी है ये वेयर द सॉफ्टवेयर बिल्ड इज डिप्लॉयड टू एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है जब हमने फेस करा था जिसमें हमने टेस्ट प्लान बनाया था, उसमें उस टेस्ट प्लान के अंदर अगर सॉफ्टवेयर वो उस टेस्ट प्लान के अंदर सॉफ्टवेयर को, जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है उसका यूआरएल दिया जाता है टेस्टर को, क्योंकि डेवलपर तो अपने कंप्यूटर पे बना रहा है, उसको तो नहीं पता, टेस्टर को तो नहीं पता कि वो मॉड्यूल कहाँ पे रखा हुआ है। माइट भी वो उसके कंप्यूटर में ही हो, लोकल होस्ट पे हो, उसने उसको डिप्लॉय ही ना करा हो, तो वो एक यूआरएल भेजता है टेस्ट प्लान के साथ। तो जब कभी भी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं ना, तो हम पहले टेस्ट प्लान को पढ़ते हैं, उसमें जो यूआरएल लिखा होता है ना, उस यूआरएल को उठाते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं अपने क्रोम के ऊपर और एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास वही वाला पेज जो डेवलपर ने बनाया है वो हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये इसको बोलते हैं कि डिप्लॉय करना टू क्यूए एनवायरनमेंट। डिप्लॉय मतलब इंटरनेट के ऊपर किसी चीज को लेके आना, इस डिप्लॉयमेंट। अभी आप जावा सीख रहे होंगे तो जावा में डिप्लॉयमेंट भी सीखोगे कि आप कैसे अपनी, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है तो उसको आप कैसे डिप्लॉय करोगे इंटरनेट के ऊपर, सर्वर के ऊपर कैसे डिप्लॉय करोगे। तो अगर वो लिंक खुल जाता है टेस्टर के कंप्यूटर में तो उसका मतलब है कि वो बिल्ड जो है वो डिप्लॉय हो चुका है क्यूए एनवायरनमेंट में, मतलब टेस्टिंग के एनवायरनमेंट में, टेस्टिंग टीम वाले डिपार्टमेंट में वो खुल चुका है। तो कई बार क्या होता है कि वो लिंक ही खुला, अगर लिंक ही नहीं खुला, वो लिंक ओपन ही नहीं हुआ, तो क्या हम उस पेज को टेस्ट कर सकते हैं?
नहीं, हम उस पेज को टेस्ट, जब वो खुला ही नहीं पेज तो हम उसको क्या टेस्ट करेंगे? और अगर लेट सपोज पेज खुल गया, लॉगिन की फर्स्ट स्क्रीन आ गई, लॉगिन के करेक्ट क्रेडेंशियल्स मींस करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड मैंने उसमें टेस्ट प्लान में जो दे रखे थे टेस्ट प्लान से उठा लिए और उसमें डाल के जैसे ही लॉगिन करा तो वो फिर आगे की स्क्रीन ही गायब हो गई, वेलकम का पेज ही नहीं आ रहा। एक ही पेज बना रखा है और वो पेज भी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या मैं उस चीज को टेस्ट कर सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट टेस्ट इट। सो कम से कम बिल्ड इतना बड़ा तो हो कि उसको हम ठीक तरीके से टेस्ट कर सकें। तो ये थोड़ा सा उसको हम टेस्ट करके देखते हैं, सारी टैब चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ये लिंक चल रहा है, यूआरएल से ओपन हो रही है वेबसाइट या नहीं ओपन हो रही है, और ये बटन वगैरह प्रेस हो रहा है, बटन से दूसरे पेज पे जा रहा है नहीं जा रहा, बस वो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और उस थोड़े से देखने को भी कॉल इट एज स्मोक टेस्टिंग और बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। मतलब ऊपर ऊपर से देखना, सारी चीजों को डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक करके देखना, हाँ ये है ये है ये है ये है, ठीक है डन। तो दिस इज योर स्मोक टेस्टिंग। इसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन? गिरीशा अब समझ में आया बेटा अच्छे से ये? Yes, sir. ओके, अदर स्टूडेंट्स? राहुल, सतीश, ठीक है बेटा। सो इसको हम बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। तो ये स्मोक टेस्टिंग का भी चलो आज ये पूरा इसमें हो गया, क्योंकि इसमें आया था बीच में सॉफ्टवेयर स्मोक टेस्ट ये वाला। नेक्स्ट जो आपका फेज है दैट टेस्ट एग्जीक्यूशन में टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप के डिलीवरेबल्स रह गए थे ना। सो इसके डिलीवरेबल्स वुड बी environment ready test data setup and smoke test results। ये इसका आउटपुट हो गया। अब हम बढ़ते हैं, वी मूव ऑन टू टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। टेस्ट एग्जीक्यूशन हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट केसेस को चला के देखते हैं, एरर्स निकालते हैं और वो एरर्स डेवलपर को भेजते हैं। तो ये सारा का सारा काम, जो मेजर काम जो होता है दैट इज इन योर टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। सो इसमें क्या क्या हम करते हैं? एग्जीक्यूट टेस्ट एज पर प्लान। जो भी हमने प्लानिंग बनाई थी, पहले करी थी पिछले वाले फेजेस में, जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेस्टिंग उसकी स्टार्ट कर देते हैं। फिर डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या होता है गिरीशा? Yes, sir. इसका मतलब why I have written this line, meaning of this is document test results। Document test result. डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट मतलब पहले मैंने बोला कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज पर अवर प्लान, फिर जो भी उसके रिजल्ट आ रहे हैं उसको हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते जा रहे हैं। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट्स। एंड So basically, we are doing documentation of whatever the result we are getting. ताकि हम टेस्ट समरी बना पाए टेस्ट साइकिल क्लोजर के लिए, और डिफेक्ट रिपोर्ट बना पाए, क्लाइंट को भेज सकें कि हमने ये थ्रेड और ये चीज ठीक है, ताकि क्लाइंट को भरोसा हो जाए कि जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है इतने पैसे खर्च करने के बाद दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी।
किसके किसके पहले बनाते हैं? वो तो प्लानिंग का होता है ना। वो तो क्या सतीश बोलो, क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया बेटा। आरटीएम तो मैपिंग का काम करता है। आरटीएम में तो हर एक रिक्वायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टेस्ट केस बना हुआ है या नहीं बना हुआ, उसको चेक करते हैं। तो वो भी हम टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में ही चेक करते हैं। लेकिन आरटीएम में स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती बेटा कोई भी। ठीक है सतीश? तो अब हम अगला क्या करेंगे? वही सेम जो आपने बोला, मैप डिफेक्ट्स टू टेस्ट केसेस इन आरटीएम। आरटीएम में क्या था, एक तरफ को रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी, एक तरफ को टेस्ट केस नंबर लिखा हुआ था। जिस रिक्वायरमेंट को जो टेस्ट केस कवर कर रहा था उसके आगे हमने क्रॉस लगाना शुरू कर दिया था। तो जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा है वहाँ पे उस क्रॉस की जगह हम डॉट लगा देते हैं या सर्कल लगा देते हैं कि ये टेस्ट केस फेल हो गए हैं। इनको डेवलपर को भी भेज देते हैं ताकि वो फिर उन टेस्ट केस आईडी देख के और फिर उसको चला के देखता है, उसको भी एरर दिखाई देता है तो फिर उसको वो ठीक करता है। फिर उसके बाद रीटेस्ट the defect fixes to closure। फिर वो क्या करेगा, जो भी उसने डिफेक्ट ठीक करे हैं उसको रीटेस्ट करेगा। इसको हम एक टेस्टिंग बोलते हैं। कौन सी टेस्टिंग होती है ये राहुल? कौन सी टेस्टिंग होती है ये? गिरीशा कौन सी टेस्टिंग होती है बेटा ये? यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग? नहीं सतीश, कौन सी टेस्टिंग होती है ये? मैनुअल। नहीं राहुल, भूल गए सारा पीछे का। ये वाली टेस्टिंग होती है। जब डेवलपर ने टेस्ट को, उसके टेस्ट रिजल्ट्स को ठीक कर दिया तो उसके बाद दोबारा से चेक करते हैं कि उसके ठीक करने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि और हमारे पास एरर्स आ गए हैं। सो दिस इज योर नथिंग बट रीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद वो जितने भी डिफेक्ट आते हैं उनको क्लोजर में डाल देते हैं कि हाँ ये ठीक हो गया, बंद कर दो इसको। ये डिफेक्ट ठीक हो गया, इस डिफेक्ट को बंद कर दो। तो यानी कि क्लोजर में डाल देते हैं उसको। अभी हम बग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है टेस्ट साइकिल क्लोजर। सो इसमें टेस्ट एग्जीक्यूशन के डिलीवरेबल्स देख लेते हैं। सो इसके जो डिलीवरेबल्स हैं दैट इज योर completed RTM with execution status। फिर उसके बाद टेस्ट केसेस विद अपडेटेड रिजल्ट्स, पास या फेल क्योंकि हमको लिखना होता है टेस्ट केस में। और उसके बाद रिपोर्ट्स, ये वाली जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करी थी, ये डिफेक्ट को क्लोजर में डालना था, उसकी डिफेक्ट रिपोर्ट। तो ये सारे के सारे इसके आउटपुट हैं इस फेज के। तो लास्ट फेज हम करते हैं अपना टेस्ट साइकिल क्लोजर।
टेस्ट साइकिल क्लोजर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? इवैल्यूएट साइकिल कंप्लीशन criteria based वेट, मैं इसको दूसरी तरीके से पेस्ट करने का ऑप्शन देखता हूँ। तो ये सारा हमारा टेस्ट क्लोजर में आता है। सबसे पहले क्या आता है इसमें? इवैल्यूएट साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन टाइम, टेस्ट कवरेज, कॉस्ट, सॉफ्टवेयर, क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी। मतलब वी फोकस ऑन टू ऑल दीज थिंग्स कि टाइम बेस्ड साइकिल कंप्लीशन हुई है टेस्टिंग की। टेस्ट कवरेज मतलब कितना portion of module has been tested, this is the test coverage. How much module has been covered from testing. Cost, software, critical business objectives, जो भी उसके essential features हैं उस प्रोजेक्ट के वो, और क्वालिटी। इस सब को हम इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद टेस्ट मैट्रिसेस बनाते हैं इन ऊपर वाले पैरामीटर्स पे। तो टेस्ट मैट्रिसेस हम बना के देखेंगे बाद में कि कैसे बनाते हैं उसको। उसके बाद डॉक्यूमेंट द लर्निंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर सपोज आपकी कंपनी ने पहला कोई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोजेक्ट हैंडल करा है तो उससे क्या लर्निंग हुई है उसको भी आप एक फाइल में लिख के डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। उसके बाद प्रिपेयर टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट कि टेस्ट क्लोजर की रिपोर्ट बनानी है कि टेस्टिंग खत्म हो गई, उसमें क्या क्या एरर्स आए, कहाँ पर आए, किसने ठीक करे, किस टाइम पे ठीक करे, किस दिन ठीक हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग ऑफ क्वालिटी वर्क प्रोडक्ट टू द कस्टमर। क्वालिटी वाइज और क्वांटिटेटिव वाइज सारी की सारी रिपोर्टिंग हम कस्टमर को के सामने प्रोड्यूस करते हैं। देन टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस, सारे के सारे टेस्ट रिजल्ट्स के एनालिसिस करते हैं टू फाइंड डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइप एंड सिवियरिटी। तो अभी सिवियरिटी क्या होता है, टाइप क्या होता है, वो हम कितने टाइप के बग्स होते हैं, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके जो डिलीवरेबल्स होते हैं वो होता है आपका टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, और दूसरा जो इसका डिलीवरेबल होता है वो होता है टेस्ट मैट्रिसेस। टेस्ट मैट्रिसेस
ओवरव्यू समझ में आ गया अगर इसका, तो हम बाकी जब बीच बीच में सारी चीज़ें जैसे टेस्ट मैट्रिक्स है, टाइप है, सिवियरिटी है, तो ये सब हम जब चीज़ें खुद से बनाएंगे किसी एक डमी प्रोजेक्ट के लिए, देन यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग देम। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है और इसका आउटपुट ये है क्या, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड ऑटोमेशन फीजिबिलिटी रिपोर्ट। फिर टेस्ट प्लानिंग का क्या क्या आउटपुट है, टेस्ट प्लान, एफर्ट एस्टिमेशन, डॉक्यूमेंट। उसके बाद टेस्ट केस डेवलपमेंट के क्या आउटपुट हैं, टेस्ट केसेस है एंड टेस्ट डेटा है। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप का क्या क्या है, एनवायरनमेंट रेडी विद टेस्ट सेटअप डेटा एंड स्मोक टेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद फिफ्थ है टेस्ट एग्जीक्यूशन, इसका आउटपुट क्या है, कंप्लीटेड आरटीएम विद एग्जीक्यूशन स्टेटस एंड टेस्ट केसेस विद अपडेटेड रिजल्ट्स एंड डिफेक्ट रिपोर्ट्स। ये क्लियर हो गया बेटा आपको सारी चीज अबाउट दिस डिफरेंट फेजेस ऑफ STLC? Any doubt into this to any of the student? At least, okay. नीचे वाले टर्म अभी हम जब करेंगे ना सतीश, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या चीज होती है। वो बहुत बड़े बड़े, जैसे एक स्मोक टेस्टिंग वर्ड आ गया था तो मैंने उसको समझाया, तो वो बहुत बड़ा था ना, उससे भी बड़े बड़े ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे टेस्ट प्लान है, टेस्ट केसेस है, ऐसे ये बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब हम करेंगे धीरे धीरे तब समझ में आएगा आपको कि ये क्या है ये चीज़। अदरवाइज आप इसको नेट के ऊपर गूगल करके देखिए, इसके सैंपल्स डाउनलोड करके देखिए। जैसे आपने लिखा टेस्ट मैट्रिसेस सैंपल, तो उसको डाउनलोड करके देखो, फिर उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ पढ़ो खुद से, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। जो नहीं समझ में आता वो एक पेन पेपर पे लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछ लो। राइट सतीश? ओके, सो let me take your attendance now। और कोई और चीज जो आपको नहीं समझ में आई आप पूछ सकते हैं अभी मेरे से, कोई भी बच्चा, नॉट ओनली सतीश, गिरीशा एंड राहुल, उनके अलावा भी कोई बच्चे जिनको कुछ नहीं समझ में आया आज के टॉपिक का, तो यू पीपल कैन आस्क मी। बताइए, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, गुड। सो आज जितना करवाया है उसको एक बारी पढ़ के देखना, कोई भी डाउट है तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, STLC से आगे वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको करके देखेंगे, और टेस्ट प्लान कैसे बनता है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो और सही डॉक्टर देना, लास्ट लेक्चर का भी नहीं किया था आपने, तो ये साथ में ही कर देना पूरा। ठीक है ठीक है ठीक, मैं अब कर दूंगा, क्योंकि वो सारा नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने नहीं उसको अपलोड करा था। अभी इसको कर दूंगा, और बाकी एक बार इसको ऊपर से नीचे तक इसमें सारी क्लासेस का मेंशन है। जो कुछ भी नहीं समझ में आना पूछ लेना, क्योंकि अभी सिर्फ बेसिक्स चल रहा है। उसके बाद मेन टेस्टिंग में आपको दूंगा कि ये वेबसाइट है, इसको टेस्ट करो, एरर्स निकालो। फिर वो सारे आपके जितने असाइनमेंट्स होंगे वो रियल टाइम बेसिस पे ही होंगे जो आपको करके देने होंगे। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे।
Thank you. Satish, you want to ask something? You want to say something? That you for that you would have to wait and see that how I give you a website, right, Satish? So, okay, thank you so much, all of you, for patiently listening to me, and we'll meet up in the next session, probably in the next week. So you would be getting a day off on Sunday. So, plus tomorrow is the deadline for your assignment submission. So make sure that is submitted on time. Sir, already submitted. Very good. So those who have not submitted, they can submit it on time till tomorrow, and then you can enjoy your Sunday as well, because the deadline is of Saturday. And then on Monday, I think your lecture would be on Monday. Yes, Monday. So we'll meet up on Monday, right? Thank you so much. Yes. You can leave now. Thank you, sir.